Hi guys, welcome back to my channel. For those of you who don't know, I'm Hunar and I make videos related to fashion and lifestyle. So I recently posted a story on Instagram asking you guys to ask me anything related to fashion, lifestyle, life advice, anything. And मैंने सोचा था कि वही जो normal questions आते हैं कि where do you buy your clothes from and where do you buy this makeup from और recommendations वगैरह होगा. But I don't know how this time there were a lot of you who reached out and asked me stuff like deep and personal stuff about your personal life, life advice. And first of all, I have to say, I was so touched that you guys trusted me enough कि तुम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताया एंड ट्रस्टेड मी कि मैं एक अच्छा सोल्यूशन दे पाऊंगी. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं तो उतना ही बता सकती हूँ जितना मुझे पता है. बाकी I would say कि you should make your own decisions, but I will try to help and guide you as much as I can. So I thought we'd turn today's video into like a real talk and life advice video. So without any further ado, let's get into the video. Hi guys, it's future me as in me. An hour after shooting the video, मैं देख रही थी सारी videos and मैंने realize किया कि पूरे first question में जो मैं चपड़ 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 बोली हूँ, मेरा mic off था, तो कुछ भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई. तो I'm gonna answer the first question again. Okay, so the first question was, hey, first of all, I really like your content and you have inspired कि मैं भी अपना कुछ शुरू करूँ and create content. Okay, but I'm scared कि what if people don't receive me well and मुझे hate मिला तो. So first of all, I'm really glad that you like my content and that you felt कि I was someone who could inspire you to start something of your own. And coming to the hate wala part, see, I'll be honest. So content creation is a profession जिसमें you need to have a very thick skin, because it's somewhere where people will have an opinion on everything you do. They'll have an opinion on your body, they'll have an opinion on the way you dress, they'll have an opinion on the way you behave. सब कुछ, मतलब छोटी छोटी चीजों से लेकर कि इसके बाल ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, ये इतना ज्यादा हंसती क्यों है. They will have something to say on everything that you do. It's just up to you कि आप इतना थिक स्किन्ड हो कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स द हेट कैन गेट इंटेंस. लाइक आई हैव हर्ड कमेंट्स लाइक कि व्हाई डोंट यू गो डाई एंड पैसों के लिए ये सब कर रही है, सुसाइड कर ले, बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग, एवरीथिंग. एंड टू द पॉइंट कि अब जब मेरी वीडियोस वायरल जाती है कि मुझे डर लगने लग जाता है कि अरे शिट, अब तो हेट कमेंट्स सुनने पड़ेंगे. बट इट्स अप टू यू कि आप अगर इतने स्ट्रांग हो कि आप अवॉइड और इग्नोर कर सकते हो ऐसे कमेंट्स को, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो ट्रोल्स होते हैं, देर जस्ट इनसिक्योर पीपल. क्योंकि जब भी लोग तुम्हें देखते हैं कि तुम कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, तुम्हें उनको तुमसे जेलसी होती है कि ओ दे आर डूइंग सो वेल एंड हम तो नहीं कर पा रहे. दे विल डू एवरीथिंग टू पुल यू डाउन, स्पेशली क्योंकि आप जाओ ना, कभी अकाउंट्स देखो ऑफ द पीपल हु एक्चुअली स्प्रेड ऑल दिस हेट, दीज फेसलेस ट्रोल्स. उनके अकाउंट में ऐसे होते हैं, जीरो फॉलोइंग, जीरो पोस्ट, और कभी भी शक्ल तो अपनी दिखाएंगे ही नहीं. और अगर जो दो तीन होते हैं जो उनकी शक्ल अपनी दिखा देते हैं, वो भी लेट्स जस्ट से कि कोई टॉम क्रूज नहीं होते. बट अगर यू फील कि आप इतने थिक स्किन्ड हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो इनटू कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि अगर एक साइड इतना हेट मिलता है, ऑन द अदर साइड बहुत, इफ यू डू वेल, बहुत प्यार भी मिलता है. तो आई वुड से कि go for it if you feel कि dealing with hate and ignoring these stupid people is something you feel you can do. So this is a really really good profession. Okay, now we can go back to the videos क्योंकि बाकी questions में मुझे thankfully mic on करना याद आ गया था. So see you back there. Okay, so the second question, I felt really sad when I read this question. My boyfriend of 2 years cheated on me and I don't know what to do. I feel like my life is over, but sometimes I miss him and feel like I should take him back. But my best friend says that it's not a good idea. What should I do? First of all, I'd just like to say कि I'm really, really sorry that this happened to you. I feel like no one in the world should have to go through this. And I'd also like to reiterate कि इसमें से कहीं भी आपकी fault नहीं है. क्योंकि बहुत बार हमें लगता है ना कि maybe I did something wrong या what if I could have done things differently. No, बिल्कुल नहीं. सारी fault is on the other person who decided to make that decision and lost someone so special like you. आई नो एग्जैक्टली वॉट यू गोइंग थ्रू. जो पेन फील हो रहा होता है, यू फील लाइक कि मैं कैसे डील करूंगी इतनी पेन के साथ, एंड यू फील लाइक कि तुमने
किसी को इतना प्यार दिया, इतना अपना टाइम दिया, all the care in the world दिया, but they still decided to do that with you. I get it, and I'm not saying it's right, but it happens, and it's the worst thing. But the thing you said here कि I feel like my life is over, I get it. Feel होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, बिकॉज कभी कभी हम उस इंसान को ही अपनी लाइफ बना लेते हैं, एंड जब वो टूट जाता है तो लाइक कि अब क्या करे लाइफ में. बट वंस लॉट ऑफ इयर्स अगो समवन टोल्ड मी कि कोई किसी के बिना मरता नहीं है. एंड मैंने जब उस टाइम सुना था, इट साउंडेड सो क्रैश कि कैसे बातें कर रहा है कि इफ यू लव समवन तो ऐसे कैसे बोल सकते हो. उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आया था, बट a few years later I realized that what he was saying was completely right. It hurts like hell. बहुत गंदे गंदे फेजेस आते हैं, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो मुझे लगता है कि मैं इससे निकल नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी इसके बिना. बट यू नो एंड ऑफ द डे यू डू गेट आउट ऑफ इट, एंड आई फील लाइक कभी कभी तुम उस एक्सपीरियंस से या उस इंसान से कुछ अच्छा ही गेन करके जाते हो. कमिंग टू द डिसीजन ऑफ वेदर यू शुड टेक हिम बैक और नॉट, आई फील लाइक दैट्स समथिंग दैट्स वेरी पर्सनल एंड आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन इट. बट आई विल से कि डोंट जस्ट टेक हिम बैक बिकॉज यूर हर्टिंग एंड तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जी पाऊंगी इसके बिना, क्योंकि उस टाइम लगेगा और बहुत वीक मोमेंट्स आएंगे कि यार ठीक है छोड़ो रहने देती हूँ क्योंकि मुझसे तो नहीं रहा जा रहा उसके बिना. बट अगर ये रीजन है ना, डोंट टेक हिम बैक. इफ यू डू डिसाइड टू टेक हिम बैक, डू इट बिकॉज तुम्हें जेन्युइनली लगता है दिल से कि you have the power in you to forgive him, and you feel like you trust him कि नहीं it was a mistake या जो भी आपके circumstances थे. तो if you do decide to take him back, do it for the right reasons and not because तुम्हें लग रहा है कि you can't live without him. And I'd also like to add a note for your best friend जो कह रही है कि don't go back to him. I totally get her point. मतलब I feel like she's a very good person that you have in your life, because when you love someone you are very protective about them. मतलब मैं वैसे तुम मुझे रियल लाइफ में मिलोगे ना, मैं किसी से ऐसे झगड़ा वगड़ा नहीं करती, किसी को एक्स्ट्रा नहीं बोलती, कभी कभी तो पुश ओवर ही बन जाती हूँ. बट वेन इट कम्स टू द पीपल आई लव, आई एम वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देम. अगर अगर किसी ने भी उन्हें हर्ट किया तो आई नो कि मैं उस इंसान की क्या हालत कर दूंगी. तो इट्स प्रोबेबली योर बेस्ट फ्रेंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. सो डोंट थिंक कि वो आपको कुछ गलत बोल रही है, एंड आई थिंक यू वेरी लकी टू हैव हर इन योर लाइफ. So going to the next question, how is your gym slash workout journey going? सही टाइम पे पूछा. अगर आपने मुझसे 2 हफ्ते पहले ही पूछा होता तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंटली रिप्लाई नहीं कर पाती. राइट नाउ इट्स गोइंग वेल. आई वोंट लाई दो, इट हैज बिन अ रॉकी रोड, क्योंकि बीच में मेरी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्कआउट में इज ऑफ कंसिस्टेंसी. मैं स्टार्ट तो ऐसे जोश में करती हूँ, बट कब धीरे 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 ऐसे हो जाती हूँ पता ही नहीं चलता मुझे. तो देर हैव बिन अ फ्यू टाइम्स कि जैसे बीच में अपनी डाइट के बारे में लैक्स हो जाऊंगी कि हाँ ठीक है हो जाएगा, या वर्कआउट स्किप कर लूंगी. बट देन तुम्हें थोड़े टाइम बाद अपने आप ही रियलाइज होता है कि नहीं भाई क्या हो जाएगा, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो. सो इसलिए फिर मैं वापस ट्रैक पे आ जाती हूँ कि नहीं डाइट स्ट्रिक्ट लेनी है, वर्कआउट स्ट्रिक्ट करना है. तो अभी 2 हफ्ते से तो टचवुड मेरी डाइट और वो सब अच्छी चल रही है. मैंने एक्चुअली बीच में अपनी डाइट चैट जीपीटी से भी ली थी, क्योंकि मेरे को अपनी डाइटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी. तो मैंने सोचा टाइम नहीं वेस्ट करती, नहीं तो तब तक मैं जंक खाती रहूंगी. तो आई एक्चुअली गेव चैट जीपीटी कि ये मेरा वेट है, ये मेरा गोल है, तो मुझे बताओ मुझे क्या खाना है. एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे क्या क्या खाना पसंद है, क्या क्या खाना नहीं पसंद, एंड it designed a whole diet plan for me which was perfect, and I've been following it intently. And workout sessions भी मेरा trainer करा रहा है. तो right now it's going well, and I feel like अपने आप ही अच्छा लगता है. पता है जब वर्कआउट सेशन के बाद तो मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ ना कि मैंने लाइफ में पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया. आई नो लोग हैं जो रोज अपने आप जिम जाते हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अगर एक वर्कआउट सेशन कर लिया तो मैंने जिंदगी में सब कुछ उखाड़ लिया है. ओके अब हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी रैप करें क्योंकि लाइट जा रही है एज यू कैन सी. Hi, I've been following you for about 3 years now, and you give off such confident vibes. I feel like people in my life take me for granted, and I also cave in and can't say no to people, but I want to change that. How do I do that? जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था ना तो मेरे को ऐसे हिट किया था, क्योंकि ये तो ऐसे लग रहा था कि हुनर इज दिस यू, ये मैंने ही तो नहीं लिखा क्वेश्चन. मतलब ओ पहली बात तो आई लाइक टू से कि आई एम सो ग्लैड कि कोई मुझे 3 साल से फॉलो करता है. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मैंने पढ़ा है लाइक ये तो मैं हूँ. मतलब मैं लगती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑल कॉन्फिडेंट, हूँ मैं कॉन्फिडेंट,
बट आई एम ऑल्सो द बिगेस्ट पीपल प्लीजर यू विल सी। मतलब नो बोलना तो मुझे ऐसे लगता है ना कि हाय कितनी मीन कुत्ती कमीनी वाली चीज बोल दी कि अगर मैंने नो बोल दिया किसी को। बट आई एम अ रिकवरिंग पीपल प्लीजर, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही रियलाइज किया कि जब तुम सबको खुश करने के चक्कर में रहते हो ना, कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं सबके साथ अच्छी रहूंगी, सबसे प्यार से बात करूँ, सबकी बात मान जाऊंगी तो पीपल विल लव मी। ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली इफ यू नाइस टू पीपल दे विल बी नाइस टू यू, बट तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जस्ट बिकॉज मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, सबके साथ अच्छा अच्छा करती हूँ, तो वो मुझे अपनी लाइफ में ही रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं पता कब तुम्हें कोई किक मार के चला जाएगा, या कब तुम्हें बोलेगा कि हाँ हाँ इसका तो देख लेंगे। क्योंकि जब तुम पुश ओवर बन जाते हो ना, तो पीपल टेंड टू टेक यू फॉर ग्रांटेड कि हाँ ठीक है ये तो मानी जाएगी, या ये तो इसको तो देख लेंगे। वो रिस्पेक्ट चली जाती है। तो जब तक यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। एंड मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ऐसा लगता था कि पुटिंग पीपल बिफोर मी इज अ साइन ऑफ लव, कि हाँ अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उनको पहले रखूंगी, उनकी नीड्स को मेरे से पहले रखूंगी। बट तुम्हें फिर लगता है कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी बदले में तुम्हें पहले रखेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम खुश रहो, रखो लोगों को आगे, रखो उनकी नीड्स को आगे, बट सबसे पहले अपने आप को रखो। क्योंकि एंड ऑफ द डे पीपल में लीव, बट अगर आप खुद को रखोगे, अगर आप खुद से खुश हो, अगर आप फिट हो, आप सक्सेसफुल हो, तो पीपल अपने आप ही आ जाते हैं आपके पास कि ओ इसने तो कुछ अचीव किया लाइफ में। तो पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बाकी फिर सबको जिसको रखना है रखो। एज मुश्किल एज इट साउंड्स, छोटी छोटी बातों पे स्टार्ट करो। जैसे मैंने लास्ट वीक एक प्लान के लिए किसी को नो बोला था, और मैं इतनी खुश हो गई कि वाओ, मैंने हुनर चुग ने किसी को नो बोल दिया है, हो गई, सॉर्टेड हूं मैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, एंड अपने आप ही तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में चेंज दिखेगा। मैं जो इतना ऐसे ज्ञान दे रही हूँ ना इस वीडियो में, जैसे मेरी लाइफ में तो सब सॉर्टेड है, कुछ नहीं है। ये सब जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ इज अ बंच ऑफ एडवाइस दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम चैट जीपीटी, एंड जो मैंने खुद फिगर आउट की है। एंड ऑल्सो रील्स से, आधे से ज्यादा ज्ञान तो आजकल मेरा रील्स से आता है। जैसे आई रिमेम्बर मैंने एक जगह पे कहीं रील देखी थी, और मैं ना उस टाइम बहुत सैड थी। एक तो मेरा एल्गोरिदम पता नहीं कैसे, जैसे ही मैं सैड होती हूँ, दुखी रील्स की इंसान का और मन करे कि नस काट ले। मतलब लाइक आई रिमेम्बर लास्ट वीक आई वाज सैड अबाउट अ फाइट विद अ फ्रेंड और समथिंग, एंड मेरी रील ऐसे कि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है, दोस्त का चला जाना या फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स। एंड आई एम लाइक भाई मैं ऑलरेडी दुखी हूँ, तुम और दुखी कर दो मुझे। But anyway, we'll quickly move on to the last question. So the last question is, I love how comfortable you are in your own skin. I have been overweight all my life, and I feel so insecure of my body, especially when my family and friends taunt me. How do you ignore such things? Okay, so I have to say this question hit home. मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट आई मेक, लोगों को लगता है कि ये तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, इसको तो कोई इनसिक्योरिटीज ही नहीं होगी, एंड बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड दैट इज ट्रू। ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड हाउ टू डील विद सच कमेंट्स एंड सच सिचुएशंस। बट ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें अफेक्ट ही नहीं करती है। मतलब बहुत बार ऐसे भी होता है कि मे बी आई एम गोइंग आउट एंड आई एम वेयरिंग अ स्लीवलेस आउटफिट, और मैं शायद लास्ट ग्लिम्स अपने आप का मिरर में देख लूंगी, एंड आई विल बी लाइक कि कैन आई वेयर दैट विद माय आर्म्स राइट नाउ, और शुड आई वेयर दैट, और मैं ऊपर शर्ट पहन लूंगी। तो आई थिंक वी आर ऑल अ वर्क इन प्रोग्रेस राइट नाउ। किसी ने भी पूरी तरह ऐसे हासिल नहीं कर लिया कि हो आई एम द बेस्ट। मतलब मेरे मोमेंट्स आते हैं जब मुझे लगता है आई एम द बेस्ट, जैसे इस टाइम मुझे लग रहा है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। बट सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है। कमिंग टू द टॉन्स फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो फैमिली वाली बात आती है, आई गेट इट, ओके। क्योंकि कभी कभी फैमिली वाले आउट ऑफ देयर लव एंड कंसर्न फॉर यू तुम्हें कुछ बोल देते हैं कि वेट बढ़ गया ना थोड़ा, या पूरे दिन पड़ी रहती हो, कुछ करती क्यों नहीं, एंड ऐसे कौन शादी करेगा तुमसे अगर ऐसी लग रही होगी तो। एंड आई हर्ड दैट टू, but I think mostly it comes from a place of concern and love for you, and also because of the kind of things they've heard growing up. तो उन्हें यही सिखाया गया था कि you have to be a certain size and shape to be married, या फिर to get a guy to like you, या फिर most of the time health concerns भी होते हैं कि we wouldn't want कि आपके साथ कुछ बुरा हो या आपके साथ कोई health concerns हो। तो I get that।
तो जस्ट ट्राई कि टॉक टू देम एंड ट्राई टू सेट बाउंड्रीज कि जब आप मुझे ऐसे बोलते हो तो मुझे और हर्ट करता है, मेरे सेल्फ एस्टीम पे आता है बात। एंड मे बी दे अंडरस्टैंड, मे बी दे वोंट। मैं तो आई फील लाइक आई हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन ओवर द इयर्स कि nothing you say will affect me at this point, but I know it's not that easy. But try to talk to them कि I am trying to lose weight, and the best thing you can do is try and support me right now, और आपके ये taunts and unwarranted comments are not helping, क्योंकि खासकर for the people who are sensitive, you don't know how much one person's comment can affect you. So just talk to them and tell them कि I'm trying. मैं भी कोई, no one wants to stay this way, everyone is trying, but सबके अपने issues होते हैं. And as for the confidence part, बाकी लोगों की वैलिडेशन मत ढूंढो। जब तुम्हें लगेगा ना, तुम्हारे अंदर से आएगा कि आई थिंक आई लुक गुड टुडे, कब तुम अपने आप ही तुम्हें फील होगा कि भाई किसी और की जरूरत नहीं है मुझे। क्योंकि आई फील लाइक अ लॉट ऑफ ओवरवेट पीपल टेंड टू हाइड देमसेल्व्स इन बैगी क्लोथ्स एंड लाइक डल कलर्स, क्योंकि वर्ल्ड ने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि जब तक तुम एक सर्टन शेप के नहीं हो जाते, सर्टन साइज के नहीं हो जाते, तुम डिजर्व नहीं करते अच्छे कपड़े पहनना या रेडी होना, एंड ब्रांड सर्टनली डोंट हेल्प विद दैट। पर ऐसा कुछ नहीं है, तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, जो तुम्हें करना है करो, बी लाउड, if you want to be quiet, but do whatever you want to do, और धीरे धीरे अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई फील लाइक कि मैंने इस वीडियो के थ्रू अपना थेरेपी सेशन ही हो गया मेरा। बट आई रियली होप कि खासकर एक तो जिसने क्वेश्चंस आस्क करे उनकी प्रॉब्लम्स में मैं कहीं भी हेल्प कर पाई हूँ, एंड इवन टू द अदर पीपल वॉचिंग द वीडियो, आई होप माई वर्ड्स रेजोनेटेड विद यू एंड स्ट्रक अ कोड विद यू, एंड कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ अच्छे वे में अफेक्ट करी हो। So that's it for today. I hope you liked this video. If you did, please like, share, subscribe, comment, and also follow me on my Instagram page at Honor26. Till next time, bye.